اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعد الجود والكرم وآله الكرام وابن الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے آپس میں نرم دل ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ ذات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے رہا ہو بھلا یا رسول اللہ، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ جس طرح قریب سے سنتے ہیں اسی طرح دور سے بھی سنتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے عزیزو یہ جان لیجئے کہ ہم لوگوں کا صرف جینے کا مقصد اتنا ہے کہ ہم لوگ مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اگر اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنی ہے تو مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں، اور میرا عنوان یہی ہے اور میں یہاں پر یہی ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں کہ اس دور میں اہل سنت کی پہچان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے عزیزو مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے بلکہ اہل سنت کی پہچان ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت یہ کسی الگ راستہ نہیں، کسی دوسرے کا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہی مسلک صحابہ کا تھا، یہی مسلک تابعین کا تھا، یہی مسلک تبع تابعین کا تھا، یہی مسلک ائمہ مجتہدین کا تھا، اور یہی مسلک آج مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میرے عزیزو آپ لوگ یاد رکھیے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں جب انکار زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہوا، جب انکار زکوٰۃ نے حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں سر اٹھایا اور زکوٰۃ کا انکار کیا، اس دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار اٹھائی اور اس جتنے انکار زکوٰۃ کو دھول چکا کر کے رکھ دیا اس دور میں، اور آپ کے سامنے تمام صحابہ کرام آپ کے شانہ بشانہ ساتھ دیتے رہے۔ اس دور میں مسلک اہل سنت کی پہچان مسلک ابو بکر صدیق سے ہوئی۔ اسی طرح جب زمانہ اور آگے رہا حضرت علی کا زمانہ آیا، میرے عزیزو غور سے سنیے حضرت علی کے زمانے میں دو باتیں فرقے پیدا ہوئے، ایک کو رافضی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو خارجی کہا جاتا ہے۔ رافضیوں نے حب اہل بیت میں آ کر کے رافضیوں نے اہل بیت سے اتنی محبت کی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی، خصوصیت کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی، جبکہ حضور نے خود فرمایا اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا، امیر معاویہ کو مہدی بنا، اے اللہ تو امیر معاویہ کو حساب کا علم عطا فرما، امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، اور اے اللہ امیر معاویہ کو جہنم کی آگ سے بچا۔ اور جب حضور نے یہ فرمان دیا
तो हज़रत अली के फरमान को भी मानते हैं। एक ही रिवायत नहीं और कई बहुत सारी रिवायतें हैं। हज़रत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब पूछा, अरे अली, मैं हुजूर के बाद सबसे अफजल आपको समझता था। हज़रत अली ने फरमाया, मैं तुम्हें क्यों ना बताऊं कि हुजूर के बाद सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक है। और फरमाया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद सबसे अफजल इंसान कौन है, जानते हो? तो हज़रत अबू जुहैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, नहीं। फरमाया, वो हज़रत उमर है। अब बताओ, जो मौलाइयत का दावा करते हैं, तो हकीकत तो सच्चाई तो ये थी कि उन लोगों को हज़रत अली के बाद मानना चाहिए, लेकिन ये लोग असल में मौलाई नहीं है, बल्कि ये लोग मवाली हैं, जो सहाबा के भी गुस्ताख है और अहले बैत के भी गुस्ताख है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे अजीजों और हाजियों ने हुब्बे सहाबा में आकर के अहले बैत की शान में गुस्ताखियां की। उस वक्त हज़रत अली ने अपनी जुल्फ़िकार उठाई और हाजियत को धूल चढ़ा करके रख दिया। उस दौर में अहले सुन्नत की पहचान बनी तफ़ज़ीलुश शेखैन हुब्बुल खतन, जो हुजूर के दोनों दामादों से मोहब्बत करेगा और अफ़ज़लियत शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा वो अताहुमा को तस्लीम करेगा, वही सच्चा और पक्का मुसलमान है। हुजूर के दोनों दामाद हज़रत अली और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अफ़ज़लियत शेखैन करीमैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। हज़रत मेरे अज़ीज़ों, ज़माना और आगे बढ़ा। इसी तरह मुअतज़िला का ज़माना आया। जिस तरह मुअतज़िला ने बहुत सारे बातिल फ़िरक़े इजाद किए, बहुत सारे बातिल अक़ाइद इजाद किया, उसी तरह उसने कहा कि जिस तरह ज़मीन मख़लूक़ है, आसमान मख़लूक़ है, चाँद सूरज मख़लूक़ है, उसी तरह उसने कहा माज़अल्लाह कुरान भी मख़लूक़ है। उस दौर में बड़े बड़े उलमा और मशाइख़ थे, लेकिन किसी को भी मुअतज़िला से टकराने की ज़रूरत ना हुई, क्योंकि मुअतज़िला के पुष्प पर हुकूमत का हाथ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस फितने को भी कुचलने के लिए इमाम अहमद इब्न हंबल को पैदा फरमाया। इमाम अहमद इब्न हंबल दरबार शाही में खड़े हुए और उस फितने की धज्जियां उड़ा दी और ये फतवा दिया, अल कुरान कलामुल्लाहि गैरु मखलूक़, कुरान अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है। और जो कुरान को मखलूक मानता है, उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। बेशक सुभान अल्लाह। उस दौर में अहले सुन्नत की पहचान मसलक इमाम अहमद इब्न हंबल से हुई। ज़माना और आगे बढ़ा। मुजद्दिद अल-ग़ज़ाली का ज़माना आया। मुजद्दिद अल-ग़ज़ाली के ज़माने में उस वक्त बादशाह अकबर का ज़माना था और बादशाह अकबर ये जाहिल था। उसकी जाहिल खोपड़ी में किसी ने ये बात डाल दी कि जिस तरह ये बात डाल दी कि हर 1000 साल के बाद एक नए दिन की जरूरत पड़ती है, लिहाजा उसने बहुत सारे उलूम व फ़ुनून को इकट्ठा किया और दीन इलाही के नाम पर फैलाने की कोशिश की, ताकत के जोर पर उसे फैलाने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस फितने को भी कुचलने के लिए इमाम मुजद्दिद अल-ग़ज़ाली को पैदा फरमाया। मुजद्दिद अल-ग़ज़ाली दरबार शाही में खड़े हुए और उस फितने की धज्जियां उड़ा दी। उस दौर में मसलक अहले सुन्नत की पहचान मुजद्दिद अल-ग़ज़ाली से हुई। और ज़माना और आगे बढ़ा। मुजद्दिद आज़म आला हज़रत का ज़माना आया और आला हज़रत के ज़माने में तो एक दो नहीं, बहुत सारे बातें फिरके थे जो अज़हर की तरह मुबाहिर मुसलमानों के वजूद को निकलने की कोशिश कर रहे थे। मिशरियत का फितना, कादियानियत का फितना, राफ़िज़ियत का फितना, सुलह कुल्लियत का फितना, देवबंदियत का फितना, इलियासियत का फितना, राफ़िज़ियत का फितना, मौलाइयत का फितना, शिय्यत का फितना, ज़ैदियत का फितना, इन तमाम फितनों के मुकाबले में तने तनहा इमाम अहमद फ़ाज़िल बरेलवी हद सिकंदरी की तरह जब गए और तने तनहा इन तमाम फितनों का मुकाबला किया। उस दौर में अहले सुन्नत की पहचान मसलक आला हज़रत से हुई। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे अज़ीज़ों, इस दौर में मसलक आला हज़रत अहले सुन्नत की पहचान है और ये मैं नहीं कहता, बहुत पहले उलमाए हरमैन तय्यबैन ने फरमा दिया। अल्लामा सय्यद मालिकी ने फरमाया था, नहनु नारिफुहु बितस्नीफ़ातिही व तालीफ़ातिही हुब्बुहु अलामतुस सुन्निया व बुग़्ज़ुहु अलामतुल बिदअ। हम आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनकी तस्नीफ़ात और उनकी तारीफ़ात के ज़रिए पहचानते हैं। आला हज़रत की मोहब्बत ये सुन्नी होने की दलील है और आला हज़रत से बगावत ये बिदअती और गुमराह होने की दलील है। एक सेकंड न मेरे अज़ीज़ों, आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु किसी बेधर्म भूत बादशाह के नाम पर मशहूर नहीं हुए, बल्कि 56 से ज़्यादा उलूम व फ़ुनून में किताबें तहरीर फरमाई। बात किताबें तो ऐसी तहरीर फरमाई कि बगैर दूसरी किताबों की तरफ मुनाजात किए हुए महज अल्लाह की दी हुई सलाहियत से किताबें
तहरीर फरमाई। आप लोग याद रखिए कि जब आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी मदीना मुनव्वरा हज के लिए तशरीफ ले गए तो आपकी खिदमत में 5 सवाल इल्म गैब के मुतालिक पेश किया गया। उस वक्त आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुखार से तप रहे थे और उसी बुखार के आलम में मजमूई तौर पर 8.5 घंटे में आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने बगैर दूसरी किताबों की तरफ मुराजात किए हुए मैं अल्लाह की दी हुई सलाहियत से एक ऐसी अज़ीम शान किताब इल्म गैब के मौजू पर तस्नीफ फरमाई जो आज तक किसी मुहद्दिस ने ना ऐसी किताब अरबी ज़बान में इल्म गैब के मौजू पर न लिखा था और ना उम्मीद है कि कोई मुहद्दिस ऐसी किताब लिख सकता है। बेशक आला हज़रत की ये शान है। मेरे अजीजों, इस दौर में जरूरत है कि हम सबको मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम हो जाए। आज आला हज़रत का नाम लिया जा रहा है, हर जगह आला हज़रत के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, लेकिन दर पर्दा आला हज़रत की मुखालिफत हो रही है। आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दलाइल इब्राहीम की रोशनी में जिन मसाइल की तहकीक फरमा दी है, आज अस्सलानो उन मसाइल पर गौर किया जा रहा है और आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़तवों को बदलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे मुखालिफ मेरे आला हज़रत को कि सुबह क़यामत तक अगर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी के एक फतवे को भी बदलना चाहो तो खुदा की कसम बदल नहीं सकते। मतलब के आला हज़रत के मानने वाले पहाड़ की तरह तुम्हारे सामने डट जाएंगे और तुम्हारे फतवे उनके सामने चलते हुए नजर नहीं आएंगे। हुजूर ताज शरिया मददल्लाहु अलैहि ने और हुजूर मुहद्दिस कबीर ने अपने गुलामों की एक टीम तैयार कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये टीम मसलक आला हज़रत की तरबियत और इशाअत में लगी हुई है। और याद रखिए कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर मजबूती मसलक आला हज़रत पर मजबूती से कायम रहिए, क्योंकि अपने वक्त के हुजूर मुहद्दिस कबीर अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस मुमताज़ुल फुक़हा उस्तादुल असातिज़ा हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा क़ादरी अज़दी दामत बरकातुहुल आलिया ने फरमाया कि जो मसलक आला हज़रत से फिरेगा वो देर नहीं है कि वो गुमराह हो जाए और गुमराह होकर के मुर्तद हो जाए, ये देर नहीं है। इसलिए मेरे अजीजों, हम लोगों को चाहिए कि मजबूती के साथ मसलक आला हज़रत पर कायम हो जाया जाए। मेरे अजीजों, मैं एक आखिरी बात अर्ज करके रुखसत हो जाऊंगा। आला हज़रत के एक शागिर्द हैं जिनकी मज़ार मुबारक पीरगंज शरीफ में हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत। ये एक बात अजमेर शरीफ से आ रहे थे और अजमेर शरीफ के प्लेटफॉर्म पर रुके। वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थे तो वहाँ पर कुछ मुस्तंदे, कुछ अहले हदीस वहाबी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर थे। तो उन लोगों ने देखा कि ये तो पीलीभीत के शेर बेशे अहले सुन्नत में मुनाज़रे में बहुत दहाड़ते हैं, बहुत वहाबी कहते हैं, चलो आज इनकी खटिया खड़ी करते हैं। लिहाजा वो लोग 2 प्लेटफॉर्म नंबर से 1 प्लेटफॉर्म पर आ गए और उन लोगों ने कहा कि ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं अजमेर शरीफ से आ रहा हूँ। तो उन लोगों ने वहाबियों ने कहा कि आप अजमेर शरीफ से आ रहे होंगे तो अजमेर शरीफ में एक जन्नती दरवाजा है, आप उससे भी गुजरे होंगे। तो कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ से भी होकर आ रहा हूँ। तो वहाबियों ने कहा तो आप जन्नती हो गए होंगे। तो उन्होंने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जन्नती हूँ और तमाम सुन्नी मुसलमान जन्नती हैं। तो उसने कहा, तो उन वहाबियों ने कहा कि हुजूर ने फरमाया कि जो जन्नती होगा उसके जिस्म से जन्नत की खुशबू आएगी। तो कोई उन सारे वहाबी कोई किसी के हज़रत के चेहरे की तरफ यहाँ वहाँ जगह नाक लगा करके देखने लगा, सूंघने लगा कि खुशबू आ रही है कि नहीं। तो सारे वहाबियों ने कहा कि हुजूर ने तो फरमाया था कि जो जन्नती होगा उसके जिस्म से जन्नत की खुशबू आएगी, तुम्हारे जिस्म से तो जन्नत की खुशबू नहीं आ रही है, इसका मतलब तुम जन्नती नहीं हो। हुजूर शेर बेशे अहले सुन्नत ने जवाब दिया कि क्या तुमने वही हदीस पढ़ी है, उसके आगे वाली हदीस नहीं पढ़ी। हुजूर ने उसके आगे फरमाया कि जहन्नमियों पर जन्नत की खुशबू हराम है और तुम लोग जहन्नमी हो और जहन्नमियों को जन्नत की खुशबू हराम है, इसलिए तुम लोगों को जन्नत की खुशबू नहीं आ रही। क्या बात। मेरे अजीजों, मेरे बोलने और आप लोगों के समाज करने में जो भी गलतियां हुई उसे माफ फरमाए। तौबा करता हूं, उलमा को गवाह बना करके अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक बार मेरे साथ कलमे शहादत पढ़ लीजिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हर रह गुजर के समाज जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।